جی سامعین کرام السلام علیکم. جی مست FM 103 ملتان کا لائیو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ طبیعت صحت مزاج کیسا ہے آپ کا جناب؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے اسپیشل پروگرام لے کر آتے ہیں, انفارمیٹو پروگرام لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے لیے بہت سارے جو مسائل ہیں عام زندگی میں وہ کم ہو سکیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے آج کا جو پروگرام آپ نے پرومو جیسے سنا کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ FBR سے خاص مہمان موجود ہیں. کمشنر انکم ٹیکس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بہت ساری باتیں ہوں گی آپ سے اور آپ کو آپ کے مسائل سے آگاہ کیا جائے گا. ہمارے ساتھ محترمہ زاہدہ سرفراز ہیں, آپ کمشنر انکم ٹیکس ملتان ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر حسین. شاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی بہت شکریہ سار بھائی, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ٹھاک ہیں میم, آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ کا انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. آج ہم نے شاکر بھائی کو بھی مدعو کیا اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, کالمسٹ ہیں, ریڈیو اینکر, ٹی وی اینکر اور بہت سارے نظر رکھتے ہیں اور ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل جو کاروباری شخصیت کو ہوتے ہیں, بہت سارے جو FBR سے ریلیٹڈ ہیں, جو ہوتے تو بہت آسان فہم ہے لیکن لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے. سو ہم نے آپ کو مدعو کیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ بیسکلی ہم ٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. جی. یہ فائلر نان فائلر ہے کیا, یہ عام لوگوں کو بتائیے کہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں لوگ. دیکھیں, فائلر اور نان فائلر میں بنیادی فرق یہ ہے, فائلر ایک ایسے ٹیکس پیئر کو کہتے ہیں جس نے اپنی آمدنی کا گوشوارہ باقاعدہ طور پر FBR کے ساتھ جمع کروایا اس اور فائل کروایا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فائلر ہے. جی. لیکن ایک ایسا شخص جس کا ٹیکس مختلف مد میں کٹ چکا ہو, کچھ اس نے اپنی موٹر وہیکل پہ ٹیکس یا اپنی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹوایا ہو, وہ ٹیکس پیئر تو ہے, لیکن اگر اس نے اپنا گوشوارہ انکم ٹیکس کے ساتھ جمع نہیں کروایا تو اس کو ہم نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈیل کرتے ہیں. جی. تو بیسک ڈفرینس یہی ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو ایک عام ہے سوچ, مطلب ہے کہ عام آدمی کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ٹیکس دیں گے تو ہمارے سارے اثاثے جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جائیں گی اور پھر ہمیں اور زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. کچھ ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اثاثے نہیں پہنچیں گے. ہمارے پاس 2000 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے. اس میں آپ اپنی ریٹرن جو بتاتے ہیں, جو آپ اپنی آمدنی لکھتے ہیں, اپنے اثاثے لکھتے ہیں, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو منوعاً تسلیم کر لیا جاتا ہے. لیکن ایک رینڈم چیکنگ کے طور پر کچھ ریٹرنز, کچھ چیزیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہاں پر بہت غلطی ہے اور یہ خزانے کو ڈائریکٹ حکومتی خزانے کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے, پھر ان کیسز کو ہم آڈٹ میں سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن ریٹرن فائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو آنے والے وقتوں کے لیے شفاف بنا رہے ہیں. اچھا, ریٹرن سے یاد آیا, ایک عام آمدنی ہے, اس کو کوئی معلومات نہیں ہے اور وہ کما بھی رہا ہے, وہ کیسے مطلب اپنے آپ کو رجسٹر کروائے؟ بڑا کوئی مشکل طریقہ تو نہیں ہے؟ شاکر بھائی, بہت آسان ہے. میں بہت ساری کھلی کچہریز, کچہریز, فیس بک کچہریز کر کے, میں چیمبر میں بھی یہ بات میسیج پہنچایا ہم نے, اخباروں کے ذریعے بھی, کہ پلیز آپ ایک بار ہمارے پاس خود آئیں. اچھا. آپ آ کے ہمارا سسٹم دیکھیں. آپ کو صرف 1 گھنٹے میں اپنی رجسٹریشن انکم ٹیکس کی مل جاتی ہے. آپ کو اپنا شناختی کارڈ ساتھ لانا ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی اپنا بجلی کا بل ہے تو وہ ساتھ آپ لے کر آئیں. اور جیسے ہی آپ وہ ہمارے پاس لے کر آئیں گے, ہم آپ کو انٹر کریں گے, آپ کا ایک پاسورڈ اور پن کریٹ ہو جائے گی, اور اس کے لیے میں آپ کو آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر ایشو ہو جائے گا. ایک دفعہ آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر مل جاتا ہے تو ریٹرن کو فائل کرنا بہت ہی آسان ہے. ہمارے پاس ایک مکمل پورا ایک ونگ موجود ہے جس کو ہم نے ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر یعنی TFC کا نام دیا ہے. اور آپ تو خود ماشاءاللہ کاروباری شخصیت ہیں, آپ کو پتہ ہوگا ریٹرن کے دنوں میں ہم ملتان میں کئی جگہوں پر کیوسک سینٹرز بھی بناتے ہیں جو ریٹرن بنانے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں.
और अगर आप टैक्स ऑफिस आएंगे तो आपसे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस रिटर्न फाइल करने के नहीं लिए जाते। अच्छा, वहाँ पर शाकिर भाई, मैम साथ साथ हमारे साथ जो है वो कॉलर्स भी हैं, हमारे साथ दोस्त हैं, क्योंकि हमने अनाउंस भी किया है कि जो आप आज हमारी ख़ास मेहमान हैं, तो किसी को अगर कोई मसला है तो आपसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे साथ लाइव कॉल पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं जावेद बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट से। जी जावेद साहब, हमारे साथ मैम जाहिदा सरफराज मौजूद हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स। कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी जी जी, मैं सर पूछना चाहता हूँ कि सर मैं अपना बिजनेस करता हूँ केमिकल का। जी। तो लास्ट ईयर 22 की मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सका। जी। तो मैं आप करूँ क्या, उस पे एक जो जुर्माना है लगता है या नहीं लगता? जी मैम, ये बताइएगा कि जी आपका सवाल पहुंच गया, अभी हम आपका जवाब देते हैं, सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जनाब लास्ट टाइम जो है ये पेस्टिसाइड का बिज़नेस करते हैं और लास्ट ईयर की इन्होंने अपनी जो है वो रिटर्न नहीं फाइल की और लेट हो गए हैं, तो पूछते हैं क्या इस पर जुर्माना लगेगा? जी बिल्कुल, इस पे जुर्माना लगेगा। अगर आपने कमिश्नर की या चीफ कमिश्नर की अप्रूवल नहीं ली कि आप रिटर्न देर से फ़ाइल करेंगे, किसी वजह से आप रिटर्न फ़ाइल करने से कासिर रह गए हैं, तो फिर आपके ऊपर रिटर्न फाइल ना करने का जुर्माना लगेगा। ये हमारे दफ़ा 182 के तहत ये जुर्माना लगता है। यानी कि अगर इसलिए कि लोगों को, हालांकि बार बार देखिए मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, मुझे भी मैसेज आते हैं FBR से और बहुत बाकायदगी से आते हैं कि आप लोग, और बाकायदा बताया जाता है कि जी ये डेट है, ये डेट है, तो पता नहीं क्यों मिस हो जाते हैं, और मिस होने का तो मेरे ख्याल फिर जुर्माना बनता है क्यों जाके। अच्छा, जुर्माना कितना होता है ये बताइए? जुर्माना 20,000। अच्छा, उसमें कोई रियायत हो सकती है अगर हम नहीं, इसमें आई एम अफ्रेड इसमें रियायत नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन आपके पास इसमें अपील का हक मौजूद है। अगर आप हमारे से मुतमईन नहीं हैं और जुर्माना आपको लग गया है तो आपके पास कमिश्नर अपील का फॉर्म मौजूद है, आप वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। उसमें कितने इम्कान? मैं कहता हूँ कि अगर सपोज एक बंदे के साथ कोई हैपन हो गया, शाकिर भाई, एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और हमें चंद 1 मिनट के बाद आप यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे, इजाज़त टूटा है। जैसे हमने कहा कमर्शियल ब्रेक है जी, उसके बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक, मस्त FM 103, इसरार चौधरी आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर इनकम टैक्स मिस जाहिदा सरफराज साहबा और शाकिर हुसैन शाकिर साहब हमारे आज के मेहमान हैं। शाकिर भाई, बात हो रही थी कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले, हम सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी, मैं इनसे सवाल कर रहा था कि अगर कोई बीमार पड़ गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो अपील में जाकर उसकी सुनवाई हो जाती है? अपील में भी सुनवाई हो जाती है। और इसमें शाकिर भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं आज फिर सब लोगों को कि आपका माली साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है, यानी पूरे 12 महीने, और आपने उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है 30 सितंबर को, यानी 3 माह बाद, माली साल ख़त्म होने के बाद। लेकिन फिर भी आवाम की सहूलत के लिए FBR की तरफ से बारहा इस मुद्दत को बढ़ाया जाता है। इस दफ़ा भी 6 महीने की सहूलत दी गई, सैलाब की वजह से, बीमारी की वजह से। लेकिन फिर भी अगर आप 30 दिसंबर तक रिटर्न नहीं दे सके मुकर्ररा तारीख तक, तो आपको फिर सेक्शन 119 के तहत ये सहूलत दी जाती है कि आप कमिश्नर या चीफ कमिश्नर से इजाज़त ले लें कि मैं 6 माह भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, मैं मुल्क से बाहर हूँ, मैं किसी बीमारी का शिकार हूँ या मेरा यहाँ पर लीगल एडवाइज़र मौजूद नहीं है, तो हम आपको उसमें एक्सटेंशन दे देते हैं। इस तरह की सूरत हाल का सामना सिर्फ उन लोगों को करना पड़ता है जो बिल्कुल तमाम दफ़ात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ आम आदमी के हवाले से कि इस वक्त हमारे यहाँ महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसकी वजह से बेरोज़गारी भी है। अच्छा, और हम ये देख रहे हैं कि आपके महकमे की तरफ से एक वो मशीन हर बड़े स्टोर पर इंस्टॉल की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो मशीन है उसको क्या कहते हैं? POS। POS मशीन जो है, उससे महंगाई जैसे पिसे हुए आवाम के लिए और मसला नहीं बनेगा कि वो आपने तमाम बड़े बड़े स्टोर्स पर लगा दी है? नहीं, उससे इसलिए मसला नहीं होगा कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप देखिए कि आप एक शैम्पू या इवन आप एक मैच स्टिक बॉक्स लेने के लिए भी, माचिस की डिब्बिया लेने के लिए भी गए हैं, तो उसके ऊपर कीमत में लिखा हुआ था कीमत जमा सेल्स टैक्स, यानी वो सेल्स टैक्स आपने हमसे तो कलेक्ट किया, हमने तो आपको उसकी डिबिया की कीमत या सर्फ की या टूथपेस्ट की इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स पे की है, लेकिन वो सेल्स टैक्स कटा हुआ हुकूमत तक या सरकारी ख़जाने तक नहीं पहुंचता। यहाँ बहुत सारी जगहों पर दुकानदार हजरात, ताजिर हजरात अपनी सेल्स जहाँ पर छुपाते हैं,
इस तरह की POS की मशीन से जो चीज़ें वो बेचेंगे डायरेक्ट उनका लिंक FBR के साथ होगा, उनकी सेल्स वहाँ पर रिकॉर्ड होंगी और वो टैक्स हुकूमती ख़जाने में जमा होकर आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान को ईजी करेगा। अच्छा, नहीं, जो बात जैसे आपने शैम्पू की मिसाल दी, उस पर प्रिंटेड है कि प्राइस प्लस सेल टैक्स, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि महकमा जो है वो जहाँ पर वो शैम्पू तैयार हुआ है मैन्युफैक्चरर के पास फैक्ट्री से, वहीं से कलेक्ट कर ले? देखें शाकिर भाई, इसमें सेल्स टैक्स में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक इनपुट टैक्स है, एक आउटपुट टैक्स है, और ये वैल्यू एडिशन टैक्स है, डिफरेंट स्टेजेस में ये वसूल किया जाता है। जो आदमी इस शैम्पू के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, इसको बना रहा है, वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर टैक्स दे चुका है। अच्छा। ये एंड कंज्यूमर टैक्स है जो कि शिफ्ट होना ही है और कलेक्ट हो जाता है और जमा नहीं होता। तो वैल्यू एडिशन टैक्स की एक खूबी ये है कि ये आखिर में आके एक्यूमुलेट होना होता है। जिस बंदे ने बनाया वो तो अपनी रिटर्न में इसको क्लेम कर रहा है, लेकिन जब रिटर्न में क्लेम कर रहा है और उसको सरकार के ख़जाने में जमा नहीं कराया जाता, तो ये एक नुकसान और बोझ है अवामी ख़जाने पर। अच्छा, उसमें कौन कौन से मतलब है कि स्टोर्स, मतलब कितने बड़े, उनके क्या एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि एक तो किसी न किसी कौमी इंटरनेशनल या नेशनल किसी चेन का हिस्सा हो, एयर कंडीशन मॉल्स में हो, दुकान का रकबा 1000 स्क्वायर फुट या उससे ज़ायद हो, और उसका बिजली का बिल पिछले 12 महीने में यानी एक साल में 12 लाख से ज़ायद हो, तो फिर वो टियर 1 रिटेलर की लिस्ट में आ जाते हैं और फिर उनको POS के लिए बुक करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल हमारे साथ हम लाइव भी लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं याकूब बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि टैक्स पेयर जो है वो रिफंड कैसे क्लेम कर सकता है या हासिल कर सकता है? ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। याकूब साहब पूछ रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है वो रिफंड कैसे ले सकता है? जी याकूब साहब, टैक्स क्लेम करना इतना ही आसान है जितना कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कॉलम बने हुए हैं। अभी आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हैं। अगर तो आप एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तनख्वाहदार हैं, तो आपका यकीनन दफ़ा 149 के तहत आपकी तनख्वाह पे से टैक्स हर महीने सरकार काट लेती होगी। आपने वहाँ पर वो लिखना है। अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल मौजूद है, उसके ऊपर आपने दफ़ा 234 के तहत टैक्स दिया है, आप वो लिखेंगे। आपके मोबाइल बिल पर जो टैक्स कटा है वो हम देखेंगे, और एंड में अगर जाके आपका टैक्स बनता है 20,000 लेकिन मुख्तलिफ कटौतियों की वजह से आप 30,000 टैक्स दे चुके हैं, तो वहाँ पर आप लिख देंगे ये 10,000 मेरा रिफ़ंड है। इसके साथ आप एक फॉर्म मिलता है 170 की एप्लीकेशन अपनी रिटर्न के साथ ही लगा देंगे कि 10,000 मुझे वापस किया जाए। ये इतना ही सादा तरीक़ेकार है। हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे और आपके अकाउंट में आपका रिफ़ंड की अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है डायरेक्ट FBR से। अच्छा, ओके जी शाकिर भाई, अब POB मशीन के बारे में मैं मालूमात ले रहा था। आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। उसमें जो स्टोर की जो सालाना सेल है उसकी भी कोई मतलब हद है मुकर्रर या नहीं? नहीं, इसमें स्टोर की सेल की हद मुकर्रर नहीं है। जो शराइत आपको मैंने बताई हैं। बिजली का बिल है उसके अंदर? उसमें बिजली का बिल है, आपकी दुकान का रकबा है। और अगर बिजली का बिल कम है तब उसमें अगर फिर आपके ऊपर ये नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि हम चाहते हैं कि पूरी कौम जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करे, फाइलर हो जाए। फ़ायदा क्या है? लोग कहते हैं कि हमें कुछ मतलब सहूलियात नहीं मिलती हैं किसी भी जगह पर। वो बताइए कि वो कैसी सहूलियात हैं? शाकिर भाई, अगर हम सहूलियात को डिफ़ाइन करने लगें तो इस वक्त जिस बिजली के नीचे बैठ के आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी हमारी हुकूमत की मुहैया करता एक सहूलत है। ये भी हमें उसी पैसे से मिली है जो पैसा हमने सरकार को टैक्स की सूरत में जमा कराया है। हमारी सड़कें, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम। ठीक है कि हम आबादी ज़्यादा होने की वजह से कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह से अभी तक ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सके, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को और सहूलियात को मापना शुरू करें एक पॉजिटिव इमेज के साथ, तो हम देखेंगे कि हम इस वक्त भी दुनिया के बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर निज़ाम चला रहे हैं। जी, एक लाइव कॉल हमारे साथ और है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब, कहाँ से? सईद बोल रहा हूँ जी, इंडस्ट्री स्टेट से। जी 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 सर, मैं ये सेल टैक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। सेल टैक्स में कैसे रजिस्टर किया होना? सेल टैक्स रजिस्टर होना चाहते हैं आप, उसका तरीकाकार? हाँ जी, तो उसकी
आपका क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट है उसकी? ओके जी, ओके। रिक्वायरमेंट जी, सेल टैक्स रजिस्टर कैसे हुआ जा सकता है और इसके रिक्वायरमेंट क्या है? आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप अपने साथ अपना बिजली का मीटर का बिल लेकर आएंगे, अपनी प्रेमिसेस का रिकॉर्ड लेकर आएंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, या आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर का बिजनेस, या कोई भी ऐसी आपकी कारोबारी नौयत जो जिसमें आप अपना कारोबार जारी किए हुए हैं, वो आप हमें तमाम डिटेल्स 2 या 4 कागज़ों की सूरत में ला कर देंगे। ये आप आके हमारे पास जमा करवाएंगे। उसके बाद हम आपके कारोबार की वेरिफिकेशन करेंगे और आपको आपका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बगैर कोई फ़ीस अदा किए जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? बात करो, मैंने FTR के मुताबिक मालूम करना था। FTR? जी सर। जी अभी बताते हैं। जी मैडम साहब, आपसे FTR के मुतालिक सवाल। FTR कहते हैं जी फाइनल टैक्स रिजीम। जी हमारे पास 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एक है फाइनल टैक्स रिजीम। जी फाइनल टैक्स रिजीम एक ऐसा रिजीम है जिसमें आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स कट जाता है वो हतमी और फाइनल टैक्स है। उसके बाद आपसे किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। इसकी सबसे सादा मिसाल मैं आपको देती हूँ कि बैंक में आपके 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और 1 साल के बाद आपको वहाँ से 14,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है, तो उस 14,000 रुपये के ऊपर आपके जो पैसे कटते हैं वो आपका फाइनल टैक्स है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है तो एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो आपका एक्सपोर्ट लेवल पर 1% आपका टैक्स कटता है वो आपकी तमाम तर इनकम के ऊपर फाइनल टैक्स है। उसके बाद FPR आपसे कोई और टैक्स वसूल नहीं करेगा, बल्कि जो आपके छोटे छोटे टैक्स कट गए हैं वो आपको रिफंड की सूरत में वापस कर दिए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे और मज़ीद सवालात इसके बाद और मज़ीद कॉल्स भी लेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक जी, उसके बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक जी। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं मस्त एफएम के लाइव स्टूडियोज़ में। आज बहुत मालूमाती प्रोग्राम है। हमारे साथ मिस ज़ाहिदा सरफराज मौजूद हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स। सवालात का जवाब दे रही हैं आम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं उस सिलसिले में। आप लाइव कॉल भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सवालात हमारे पास मौजूद भी हैं। जी शाकिर भाई। अच्छा, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ। हम काफ़ी देर से ये सवाल और जवाब कर रहे हैं कि फाइलर होना चाहिए। कानून के अंदर कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हुकूमत ने अससना रखा हो, रैद की हो, कि जो फाइलर ना हो लेकिन वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकते हैं? जी, इसमें हमारे पास दफ़ा 114 के तहत अगर आपकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम है तो फिर आप टैक्स की रिटर्न फाइल करने के अहल नहीं है। अच्छा। और ना ही आपको कहा जाएगा, और अगर आपको कहीं से नोटिस आ भी जाए तो उसका एक बहुत सादा सा जवाब है कि आपकी सालाना आमदनी क्योंकि 6 लाख से कम है, चाहे वो कारोबार से है या तनख्वाह से, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। बेवाओं के लिए इस्तिस्ना है, यतीम बच्चों के लिए 25 साल की उम्र तक के लिए इस्तिस्ना है। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी है, आप 60 साल के अगर हो गए हैं तो आपका टैक्स आधा कर दिया जाएगा। और माजूर बच्चों के लिए या माजूरों के लिए भी एक ख़ास है हमारे पास सहूलत कि उनका टैक्स भी आधा अभी होगा। काफ़ी साल पड़े हैं लेकिन मैंने आपको एडवांस खुशखबरी दी है। बहुत शुक्रिया। जी एक अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब हमारे साथ, कहाँ से? समीउल्लाह खान बात कर रहा हूँ जी, मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी समीउल्लाह साहब, सवाल बताइए, कोई मैम से पूछना चाहें। सवाल ये है कि जी हमारा केमिकल का बिजनेस है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, हमारा रिफंड पड़ा है 1.5 करोड़ रुपए का। अच्छा। तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किसको मिलना है? दरखास्तें भी दी हुई है लेकिन अभी तक जारी नहीं हो रहा है। ओके जी, तो साइनिंग कर सकती है ऐसे। ओके जनाब। ये 1.5 करोड़ का रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं जी, और ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम किसको मिलें। जी, आपका केमिकल का रिफ़ंड है, सेल्स टैक्स का रिफ़ंड है। तो सेल्स टैक्स के सारे रिफ़ंड ऑनलाइन FPR के फास्टर सिस्टम के थ्रू होते हैं। आप FPR के लिंक पर जाके फास्टर को क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो आपने रिफ़ंड की अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है वो आप रीसबमिट करेंगे वहाँ पर, तो आपको जो क्वेरी वहाँ पर लगेगी वो आप तक ईमेल के ज़रिए आ जाएगी। आपका इनपुट टैक्स और आपके आउटपुट टैक्स दोनों की वहाँ पर जाँच पड़ताल होगी और वो ऑटोमेटिकली वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके जी शाकिर भाई। अच्छा, ये फरमाइए कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो हमेशा ये बात करते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो गवर्नमेंट काट लेती है,
کیا مطلب ہے کہ واقعی یہ درست ہے؟ جی بالکل. اچھا. ٹیکس ہمارا دیکھیں، اگر ہمارا سال کا 2,50,000 یا 3 لاکھ روپیہ ٹیکس کٹتا ہے تو اس کو 12 ایکول انسٹالمنٹس میں یا 12 قسطوں میں، جیسے ہر مہینے ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو وہ ٹیکس ہماری تنخواہ سے کٹ جاتا ہے. یہ ہماری سہولت کے لیے ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیے کہ تنخواہ دار طبقہ جس کی تنخواہ ویسے ہی 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ مہینے کی ہو اور اس کو جون گزرنے کے بعد اچانک 2.5 لاکھ اکٹھا ٹیکس جمع کرانا پڑے تو یہ اس کے لیے کافی مشکلات کو جنم دے سکتا ہے. اس لیے ہر مہینے اکاؤنٹس آفیسز کے تحت یا جو بھی آفس جس کے ذریعے آپ کی تنخواہ آ رہی ہے اس پہ سے آپ کی ٹیکس کی کٹوتی ہو جاتی ہے. یہ فرمائیں کہ آپ ایک عرصے سے یہاں پر بطور افسر کام کریں اس محکمے میں، لوگوں کا کیا رجحان ہے فائلر بننے میں؟ کوئی تیزی آئی ہے، یہ کمی آ رہی ہے، یا ویسے ہی چل رہا ہے جو پہلے دن سے تھا؟ نہیں، جو میں نے آبزرو کیا ہے بائی دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں ٹیکس پے کرنے کا شعور بھی زیادہ آیا ہے. اور ملتان RTO جس کی پاپولیشن کسی وقت پر بہت کم تھی، آج ملتان میں ہی صرف 6,29,000 انکم ٹیکس کے ٹیکس پیئرس موجود ہیں. اور ہر سال آپ دیکھیے ہم بجٹ پچھلے سال سے ڈبل یا ٹرپل ہم وصول کر رہے ہیں. اچھا. تو رسپانس بھی اچھا ہے. اوور آل پاکستان لیول پر بھی آپ دیکھیں 8.9 ملین ہمارے پاس اس وقت پر ٹیکس پیئرز ہیں، جو 2019 تک 18-19 تک 2.2 ملین تھے. بہت تیزی سے مطلب. جی الحمدللہ. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے کیا کیا اویئرنیس کی مطلب ہونا چاہیے؟ مطلب جیسے تعلیمی ادارے ہیں یا مطلب کاروباری ادارے ہیں، کیا وہ تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ جب کسی کے پاس نوٹس چلا جائے اور وہ ٹیکس پیئر خود ہمارے پاس آئے، ہمارے محکمے کے کسی افسر سے ملے، تو ہم ان کو ان تمام باتوں پر قائل کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس، آج کا ٹیکس بھرنا آپ کے فائدے کے لیے ہے. اگر آپ 10 سال ٹیکس نہیں دیتے اور آپ ٹیکسیبل انکم بھی کما رہے ہیں تو ون فائن مارننگ جب آپ زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی جائز بچت میں سے، آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی اور ایکسپینس کرنا ہے، تو اب وہاں پر کیونکہ آپ فائلر نہیں ہیں، ٹیکس پیئر نہیں ہیں، تو آپ کے ٹیکس کے ریٹ ڈبل یا ٹرپل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈبل ٹرپل ٹیکس ریٹ سے کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اور اپنے تمام تر اثاثوں کو شفاف رکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ٹیکس بر وقت ادا کریں. اچھے شہری ہونے سے یاد آیا کہ جو بندہ ساری زندگی ٹیکس دیتا ہے، FBR کی طرف سے، اس کی طرف سے کیا سہولیات، ان کو کیا مختلف جگہوں پر جیسے پوری دنیا میں ہے، ان کو ایئرپورٹس پر سہولیات ملتی ہیں، ریل میں ملتی ہیں، ہسپتال میں ملتی ہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام وضع ہوا؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس طرح کا ٹیکس پیئرس کے لیے اسپیشل چیزیں شاید ہمارے پاس نہیں ہیں ابھی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹیکس ادا کرنے والے لوگ، فائلر لوگ کتنے کم ہیں. تو سب سے بڑی سہولت تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے ٹیکس 1% دینا ہے، یا اگر آپ فائل نہیں کر رہے، آپ نے 5 یا 7% دینا ہے اور فائلر کی صورت میں آپ 1% ٹیکس دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو آپ کو بینیفٹ ہے. آپ کے دیے ہوئے ٹیکس سے ہاسپٹلس چلتے ہیں، دوائیاں چلتی ہیں. آپ دیکھیے ہمارے ایمرجنسی سینٹرز چلتے ہیں، ہماری روڈز بنتی ہیں، بریجز بن رہے ہیں. آپ پیرالل دیکھیے کہ ہمارے پاس اتنی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس ٹیکس کی آمدنی سے ہوتی ہے. تو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، ٹھیک ہے کہ پرائیویٹ مافیا بھی بہت ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ کے اسکولز اور گورنمنٹ کے اداروں کی ایک اپنی سینکٹیٹی اور ایک اپنی انٹیگریٹی ہے. تو یہ سارا ٹیکس جو ہم 1-1 روپیہ پے کرتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی استحکام میں، اس کے مستحکم ہونے میں حصہ ڈالتا ہے. بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا حصہ اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدگی سے جو ٹیکس بنتا ہے اس کو پے کریں. ابھی آپ نے ایک بات بتائی ہے کہ 2019 سے آنورڈ 2023 تک ملتان ریجن میں ٹیکس پے کرنے والوں کی تعداد میں بہت خوشکن اضافہ ہوا ہے. اس میں جو بڑے فائلر ہیں اس میں کتنے فیصد ہیں جو انہیں اچھا ٹیکس پے کیا ہو؟ شاکر بھائی میں ایز سچ آپ کو نمبر آف ٹیکس پیئرس نہیں بتا سکتی، لیکن ہمارے پاس بہت اچھے اور بڑے ٹیکس پیئرس موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں پاک عرب فرٹیلائزرز ہے، فاطمہ فرٹیلائزرز ہے، شیخو شوگرز ہے، ہمارے پاس بہت سارے بڑے لیور برادرز کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ہمارے پاس نیسلے کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں. آپ ایک عرصے سے ملتان میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس شہر کی بیٹی ہیں، تو افسر بھی ہیں اور بڑی مطلب سخت گیر میرٹ پر کام کرتی ہیں. آپ بازار بھی جاتی ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوتے؟
आपको पता है ना, मैं बाजार बहुत कम जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुल्तान में अगर कहीं जाती हूँ तो मेरा ख्याल है वो फीलिंग्स है। और ये किताब नगर है, वो तो ज़ाहिर है कि जब ज़माने तालिब इल्मी की बात हम करते हैं और फिर आप किताब की शाइक हैं, किताब पढ़ती हैं, तो क्या समझती हैं कि जो एक माजी में था कि इनकम टैक्स के दफ्तर के साथ, इनकम टैक्स के एहलकारों के साथ लोग बहुत डरते थे, वो मतलब रुझान तब्दील हुआ? बहुत तब्दील हुआ है शाकिर भाई। मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है अभी भी अगर मैं बाज़ार जाती भी हूँ तो शायद 98% लोग मुझे नहीं जानते। अच्छा, तो ये मतलब तब्दील हो गया है जी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ नाम से तो शायद जानते हों लेकिन मुझे बाय फेस कोई नहीं जानते। माजी करीब से मतलब पिछले 15 से 20 सालों की अगर हम बात करें तो इस शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सैलाब आया है। क्या उनके यहाँ जितना बिजनेस हो रहा है आपको वहाँ से उतना रिटर्न मिल रहा है? ऑन अ सेफर साइड आई से नो। मतलब है कि वो चीज़ें जो आवाम से ले रहे हैं? नहीं, मैं आपको इस बारे में एक मेरी जो अपनी राय है कि जितना टैक्स हमें आना चाहिए वो हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा। जैसे आपने पहले कहा कि जी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ क्या दे रही है, हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारी कौम को, माजरत के साथ मैं भी इसी कौम में शामिल हूँ, हमें अपने हकूक़ याद आते हैं लेकिन हम अपने फ़राइज़ की गिनती नहीं करते। हकूक़ के साथ एक फ़राइज़ की जंग भी साथ साथ चलती है। तो अगर हम देखें तो उतना टैक्स नहीं आ रहा जितना लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स अभी भी हमारे पास जो लीकेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको पूरी तरह से प्लग नहीं कर सके। हमारी कौम के पास, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि अगर हमारी एनफोर्समेंट थोड़ी सी ज़्यादा सख्त हो जाए तो हम बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए शाकिर भाई कि जो भी टैक्स पेयर है उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई गाड़ियों की परचेजिंग, कोई और चीज़, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि जो टैक्स पेयर है उसको तकरीबन आधी फीस देनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप ज़मीन ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपका टैक्स, अगर आप फाइलर हैं तो 1%, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की और ATL के ऊपर आपका नाम नहीं है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर, तो फिर आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा। एक सवाल जो मैं समझता हूँ बड़ा अहम है कि हम हैसियत कौम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन इसमें हर्डल्स, वो कौन सी तंजीमें हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस पूरी कौम को मना करते हैं कि जी आपने इस तरफ नहीं जाना, और वो सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, महकमे के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। वहाँ पर आपका बराह रास्त अवेयरनेस का सेशंस क्यों नहीं होता ताकि वही लोगों को बताएं? शाकिर भाई, हम खुली कचहरियों के ज़रिए, अखबार इश्तिहारों के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, और हम अपने दफ्तर में स्टैंडीज़ लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, सड़क पे गुजरने वालों को दावत देते हैं कि आप आइए। मैं खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एप्टमा में, एब्यूमा में कई दफ़ा जाके मैंने ये मैसेज खुद से कन्वे किया। आप देखते रहते होंगे, अखबारों में भी आता है कि बराए मेहरबानी आप एक बार हमारे पास खुद से आके हमारा सिस्टम देखें। 6,29,000 लोग मुल्तान में रिटर्न देते हैं और उनमें से अगर 2,000 लोगों का ऑडिट होता है तो आप देखें कि ये जस्टिफाइड ऑडिट है। क्या ये बेहतर नहीं कि जो मुस्तकबिल की माएँ हैं, मैंने देखा आप गई हैं तालीमी इदारों में जाकर, अगर लेक्चर का एक सिलसिला शुरू किया जाए? ये लेक्चर का सिलसिला मैंने शुरू किया था। जो MBA के बच्चे हमारे पास आते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनको मैं खुद पढ़ाती हूँ। और एक जो हमारे पास नारा है, आर हार्ड अर्न्ड टैक्स मनी, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। उनको बताती हूँ कि बेटा ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है कि हमने इसकी तरफ हिस्सा डालना है। हम जिस घर में रहते हैं हमें कभी ना कभी ना चाहते हुए भी उस घर की सफाई भी करनी पड़ती है, उसके किसी न किसी हिस्से की मुरम्मत भी करनी पड़ती है, मेंटेन भी करना पड़ता है। हमें इसी तरह से अपनी सोच को बदल के, ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा माओं को, ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पर माओं को एनालिटिकल स्टडीज़, तज्ज़ियाती मुतालिया करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडीज़ करनी चाहिए दूसरों मुल्कों के साथ। हम दूसरे मुल्कों की मिसाल बहुत आराम से देते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें एक लाइन बनानी पड़ जाए हम वहाँ पर बेहौसला हो जाते हैं। तो हमारी माओं को जो रोल प्ले करना पड़ेगा, जो किरदार अदा करने पड़ेगा, वो इस वक्त सबसे ज़रूरी है। और वो मेरा ख्याल है सबसे पहले कुरान की रोशनी में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात की रोशनी में, तहम्मुल, इसकी कमी हो गई है हमारे यहाँ माशरे में। ये बुनियादी बात है।
तो जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बातें इतनी अहम होती रहीं कि वक्त गुजरने का पता नहीं चला, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि टैक्स देना कितना आसान है। टैक्स कोई तोप नहीं है, बहुत आसानी से आप ख़ुद भी टैक्स पे कर सकते हैं और बाकायदी तौर से इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हम अपने स्टूडियोज़ में मौजूद मोअज़्ज़ज़ मेहमानों शाकिर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारी मदद भी की और आपने नुमाइंदगी भी की कारोबारी लोगों की। उसके साथ साथ मिस मैम हमारे साथ मौजूद थी, ज़ाहिदा सरफराज साहिबा, कमिश्नर इनकम टैक्स। आपका वक्त बहुत कीमती और आपने हमें जो है वो इस सिलसिले में टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। सामने कराम, इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान इसरार चौधरी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।